In the last lecture, I talked, explained and demonstrated about lay and its different speed, vilambit lay, madhya lay and drut lay, and its laikari, that is thalay, dugun, tigun and chaugun. I also played and explained about the tal, theka of teen tal. It's tali, thali, vibhag, and most important of its first matra, that is sam, and the whole avartan. I gave you some examples of anaghat and atit and the various tihais. Today I am going to talk about bandish. Before that, I think we will just have a teen tal first, just to revise it. Tin tin ta ta dhin dhin da dha dhin dhin da dha dhin dhin da dha tin tin ta ta dhin dhin. 1, 5, 9, 13. Da din din da dha din din da dha tin tin ta ta din din da dha. Okay, now let's talk about bandish, that is composition. The word bandish comes from a Persian word. Bandish is composition. It's a fixed melodic form created out of swar, lay, tal, rag, and of course the lyrics, that is the words. Now let us discuss the bandish form and its characteristics and its role in elaborating a rag. First of all, why does an artist need a bandish, need a composition? In other words, what is the process of creating a bandish? An artist who is a very creative and sensitive person expresses his bitter and sweet experiences of life through melody, of course. Sometimes the melody is worth preserving for posterity. So bandish is a way of preserving that melodic expression. I am going to concentrate on only khyal bandishes. Khyal singers consider their repertoire of bandishes to be their most valued possession. In fact, many masters of earlier generation have gone to the extent of saying that the bandish provides adequate basis for elaborating the rag. So no separate theory describing the scale, wo kaun se that ka hai, what is vadi, what is samvadi, you don't need that. Perhaps they were right. I think they are right. We recognize people by their faces. A good bandish in a rag offers an easily recognized identity like a photograph. For example, I think everybody knows this well-known bandish in rag Yaman. Yeri Ali Piya Bina. I think everybody knows that because it's a basic Yaman rag with a basic composition. It goes like this. Da din din da ye re
a bandish has a balance to it in many ways. And there is beauty in this balance. First of all, there is a balance of melodic form. The notes employed in different parts of the bandish must appear related to each other. After hearing the whole bandish, the listener must feel that, oh, that is how it had to be. So another meaning of balance is the distribution of words over the tal cycle. Sometimes a stress point, which can be the beginning of the word, comes just before a beat or after a beat. That is called anaghat and atit. Last time I told you about this. What is anaghat? Can you tell me? Anybody? Before, right? Before the beat, that is anaghat, and after the beat is atit. There are two processes going on here. On the whole, the flow of the bandish and the placement of most of its words must create the tal cycle in the listener's mind also. So against this overall picture, an occasional atit or anaghat creates a challenge, just like this. Da 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 da. Sakiya re aale piya bina saki kalana parat mohe ghade pal china china kalana parat mohe ghade pal china china yaale piya bina sakiya re yaale piya yeri aale piya bina sakiya re aale piya bina. The third sense of balance comes from the distribution of words in the bandish. Ali piya bina sakhiye re ali piya bina sakhi kalana parat mohe ghade pal china china kalana parat mohe ghade pal china china yaale piya bina. So they should not be spaced out or not too crowded in any part of the bandish. Rather, they should seem to flow in a conversational way as the bandish is sung. I will sing one more bandish in Rag Bhoop. And in this bandish, there are so many anaghat and atit are used. Dha, din, din, da. Just din, din, da, da, din, din, da. Dha, tin, tin, ta, ta, din, din. The words are Nad Vidya Aparampar
कहत गुनी जन बारंबार। सुर संगत सो राग उपजे, सुर असंगत सो राग बिगड़े। कहे आनंद सो भेद अपार, नाद विद्या अपरंपार। This composition is the composer is Prahlad Rao Ganu from Bombay. Din din da da din din da. नाद विद्या परंपार, नाद विद्या परंपार, नाद विद्या परंपार। कहत गुनी जन बारंबार, नाद विद्या परंपार। कहत गुनी जन बारंबार, नाद विद्या परंपार, नाद विद्या परंपार। कहत गुनी जन बारंबार, नाद विद्या परंपार। समझ में आया क्या कुछ? द द द द का द द द द द द द द आ ना ना आ ना 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 द द द आ। नाद विद्या परंपार। सुर संगत सो राग उपजे, सुर संगत सो राग उपजे, सुर संगत सो राग बिगड़। कहे आनंद सो भेद अपार, नाद विद्या परंपार, नाद विद्या परंपार। कहत गुनी जन बारंबार, नाद विद्या परंपार। सुर संगत सो राग उपजे, सुर संगत सो राग उपजे, सुर संगत सो राग बिगड़। कहे आनंद सो भेद अपार, नाद विद्या परंपार, नाद विद्या परंपार। So there were so many Atit and so many Anaghat were there. When there is fifth matra where the tali, second tali and the third tali, so I'm avoiding that. Sometimes I'm avoiding that, sometimes I'm making it on the tali. सुर संगत सो राग उपजे, सुर संगत सो राग बिगड़। कहे आनंद सो भेद अपार, नाद विद्या परंपार, नाद विद्या परंपार।
there is one more thing. The way the mukhada merges with the last line. Da, da, din, da, da, tin, tin, ta. Da, 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 da. Nada vidya param param kahat gune jana baram baram nada vidya param param. If bandishes are to be the basis for understanding the rag, then naturally the more bandishes we know, the more the nature of the rag will become clear to us. This must be the reason for the traditional advice to students not to consider their education in a rag complete till they have collected at least 15 to 20 bandishes in the same rag. एक बंदिश या दो बंदिश या तीन बंदिश, मतलब एक विलंबित ख्याल, एक मध्य लय और एक ज्यादा से ज्यादा एक तराना, इतना हो जाने के बाद हो गया 9। एक राग में कम से कम 20 बंदिशें होनी चाहिए। वो क्यों, वो मैं अब आगे बताती हूं। Another advantage of knowing many bandishes is that each bandish gives the singer an opportunity to present a different picture of the rag. एक अलग एंगल से हम लोग हर एक बंदिश को देखेंगे तो वो भी आप लोगों को बात समझ में आएगी। वो भले ही वही राग हो, वही स्वर हो, ताल अलग है, मुखड़ा अलग है, लय अलग है, और बंदिश के उसमें जो मुखड़े की जो सम है वो अलग स्वर पर है, उसका प्रस्तुतिकरण, उसका प्रेजेंटेशन बदल जाएगा। In major and expansive ragas such as Yaman, Bageshri, Malkaus, Bhairav, Todi or even Purya Dhanashri, the number of permitted phrases can be enormous. बहुत सारे हो सकते हैं। So consider these 3 bandishes I am going to sing in Purya Dhanashri. I am going to talk only bandishes. Maybe it's Vilambit, Madhyalay or Drut or Tarana bandish or any bandish. बंदिश को लेने गाने के बाद उसका आगे डेवलपमेंट कैसे करेंगे ये हम लोग बाद में देखेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू वैरायटी ऑफ बंदिशेस इन डिफरेंट तालास एंड डिफरेंट रागास एंड डिफरेंट लय। ओके, फर्स्ट दिस बंदिश इज इन पूर्या धनाश्री एंड इन विलंबित एक ताल। Okay, now first we have to see this tal. Dha, ge, ge, ti, ra, ke, ta, dhin. One, 2, 3, 4, 5, na, cut, 7 matra, 8, ta, dha, that is 9, ti, 10, ta, dhi, 11,
Now, the sum sa na ये कौन सा स्वर है? नी. ओके, नी मंद्र सप्तक. अब निषाद मंद्र सप्तक के निषाद पे आपका सम आ रही है. तो ये एक बंदिश हुई. एक मैं आपको और सुनाती हूं जिसकी सम जो है वो मध्य सप्तक के निषाद पे है. एक चेंज हुआ. नंबर 2 चेंज ये हुआ कि वो जो लय हम अभी जो आपको सुनाने वाले हैं वो इस लय से थोड़ी बढ़ी हुई है. नंबर 2 चेंज. और इसीलिए वो निषाद के ऊपर, मध्य सप्तक के निषाद के ऊपर उसका सम होने के कारण कोई भी आप आलाप लेंगे तो मैं पहले आपको इस बंदिश में आलाप, 1-2 आलाप केवल सुनाती हूं, वो कैसे होगा. और यदि हमने बंदिश बदल दी, उसका मुखड़ा बदल दिया, उसका सम बदल गया, तो उसमें उसको प्रेजेंट करने समय हम क्या करेंगे. ये पहली मात्रा हुई. अब हम लोग लेते हैं फिर से ती र. ये कौन सी मात्रा है? एक बात, एक ताल में धागे तिरकिट 2 बार आता है. धिन धिन धागे तिरकिट मतलब 3 और 4. और तू ना कत्ता धागे तिरकिट वो आता है 9 और 10. तो इधर 3 और 4 और 9 और 10. तो हम लोग यहाँ पे ती र 10. अब दो रोदा मा मैं तुम्हें साना प्यार तो अब आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ में ठेका केवल हाथ से धिन धिन धा गे गे टी र की ट टू 5 मात्रा है. 6 7 8
9 10 मैं तुम्हें सारा प्यार तो अच्छा, अब इसी को हम लोग एक दो आलाप में लूंगी जिससे कि आप लोगों को धा गे 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 ती र की ट आ ब दो ओ रो दा आ न आ अब हमारा यदि मुखड़ा म पद म प म ग म रे ग म ध नि र नि ध नि ऐसा है, तो निषाद के ऊपर सम आने के बाद रो द म आपको एक निषाद से लेकर के या तो आप निषाद पे छोड़ दीजिए रो द म ऐसे तो नहीं कर सकते ना, तो उसको निषाद को ऊपर से लेकर के आपको नीचे उसको लाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जो बीच में स्पेस है वो एकदम ही अनम्यूजिकल गैप हो जाएगा। वो सेकंड मात्रा मा आप देखिए अब दो ओ रो दा मा, हमने सा में छोड़ दिया। जब हमने देख लिया कि धागे तिरकट 9-10 मात्रा आ गई, उसके बाद हमको मुखड़ा चालू करना है, तो सा पा अब, तो वो भी अनम्यूजिकल गैप होगा। मतलब आपको उसको फ्लो में रखने के लिए आपको वहां तक ले जाना पड़ेगा, वो ट्रैवल जो है आपका उधर तक। आ
तो इस बंदिश का जो मुखड़ा है वो बेसिकली मध्य सप्तक पे है, ठीक है। अब हमको यदि मंद्र सप्तक पे काम करना है, हमको मंद्र सप्तक पे काम करना है। अब दूसरे को हम देखते हैं। अब जो हूं ना आए, इसका मुखड़ा भी देखिए छोटा है लेंथ में।
इसमें स्कोप है, नीचे के मंत्र सप्तक में आप बहुत अच्छे से आलाप कर सकते हैं। वो जो पहले हमने जो अभी आप सुनाया था अब तो ऋतुमान में, उसकी लय भी थोड़ी सी चढ़ी हुई है, मुखड़ा लंबा है, मध्य सप्तक के निषाद पर उसकी सम है। ये सब कारण देखते हुए हम जब उस ख्याल को गाएंगे तो उसको अलग सजाएंगे, उसका डेकोरेशन अलग होगा। जब इसको गाएंगे तो इसका डेकोरेशन अलग होगा, भले ही वो एक ही राग क्यों ना हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक अब और है बंदिश जो कि झपताल में निबद्ध है। तेरे दरस की लालसा करत सब देव गंधर्व गण किन्नर नर मुनि। और इसके जो सम है वो धैवत पर है। पहले मैंने आपको जो ख्याल सुनाया था विलंबित एक ताल में, वो मंद्र सप्तक के निषाद पे उसकी सम थी, मुखड़ा वो सवा मात्रे का था। उसके बाद जो दूसरा सुनाया था वो भी विलंबित एक ताल में था, जो मध्य सप्तक के निषाद पे थी। अब ये मैं तीसरा आपको सुना रही हूं, इसके सम जो है वही पहली मात्रा है और धैवत पर सम है, मध्य सप्तक के धैवत पर। धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड है। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 3 2 3 10 मात्रा। धी ना धी धी ना। 1 6 7 8 तेरे दरस के तेरे दरस के लाल सा
इसमें क्या आप लोगों ने देखा? अब थोड़ा सा हम जरा कुछ अलग करके देखते हैं, कुछ समझ में आता है क्या? देखिए, पहला जो आलाप लिया उसको, उसका और उस लय से कुछ मैच हो रहा था क्या? ये एक आलाप लेने का प्रकार हुआ। यहाँ पे मैं लय के साथ में कुछ खेल करने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि लय भी है और ताल भी वैसा है, और मुखड़ा जो है वो सम पे ही चालू होता है। ना ती ना धी धी धा त धी, ये हमेशा याद रखिएगा।
के धा धा धी ना धी 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 So now you have heard 3 compositions in Rag, Purya Dhanashri, and seen how the bandish colors the presentation, although the Rag remains the same. अभी हमको आपको केवल बंदिश सुनानी थी और 2 आलाप केवल एक उदाहरण के तौर पे हमको सुनाना था. आज मैं केवल बंदिश के बारे में बोल रही हूँ. Okay, next. There are 2 parts to a bandish. First, thai or refrain. The presentation of a bandish begins and ends with the sthai. The antara which comes in between is the other part. The part of sthai which comes just before some is called the mukhada. The mukhada is used as the title when referring to the bandish. थोड़ा सा अब हम लोग मुखड़े पे ही आते हैं. मुखड़ा is an important part of the bandish. It usually employs key phrases of the rag. Da 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 tere dare sake dha pa maga marega aba to o roda ma ma pada ma pa maga marega ma dha ma dhani 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 ajana nirgare maga pamada magare sa rezazani. So mukhda also has an inbuilt rhythm to it, through which the approaching sum is highlighted. उसमें यह भी समझ में आ जाती है कि कौन सी लय है. Mukhdas of Bilambit compositions can sometimes be very short or long. Just a syllable or two if it is a short, taking half matras or so. Sometimes they can be much longer, going up to 2 matras. अभी मैंने आपको करके दिखाया. एक और बंदिश देखते हैं, क्योंकि यदि देखा जाए तो स्थाई जो होती है वो अधिकतर पूर्वांग में होती है. And while the antara is in the upper part of the octave, कुछ ऐसी भी बंदिशें हैं जिसमें कि अंतरा उत्तरांग में न चालू होते हुए नीचे से चालू होता है. तो उसको जरा देखें क्या है. एक ऐसी बंदिश देखते हैं और एक वैसी बंदिश देखते हैं. ये वैसे तो मैंने आप लोगों को सुनाया है यहाँ पे अभी, ये री आली पिया बिना, ये द्रुत की अब बातें हम करने लग गए.
विलंबित का भी हमने थोड़ा देर छोड़ दिया। ये बंदिश है द्रुत की रचना, राग भूपाली में निबद्ध और त्रिताल में है। इसके रचनाकार हैं बनारस के पंडित बलवंत राय भट्ट जी। इसके शब्द भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग भाषा के ऊपर आए नहीं, वो भी मैं बोलने वाली हूँ बाद में, लेकिन अभी जो है वो ही सुन लेते हैं। एरी बाजे मुरलिया बन में, एरी बाजे मुरलिया बन में, कुंजन में धुन गूंज रही, कुंजन में धुन गूंज रही, अत रंग भरी मधु भाव भरी, रस भरी रसिक मन में। एरी बाजे मुरलिया बन में, कुंजन में धुन गूंज रही, अत रंग भरी मधु भाव भरी, रस भरी रसिक मन में। ये हो गई आपकी स्थाई। अंतरा, शांत कांत संचार होत, मनो सिद्ध मंत्र श्रवणन में। शांत कांत संचार होत, मनो सिद्ध मंत्र श्रवणन में। भूपाली सुर श्याम बंसरी, अनुपम त्रिभुवन में। येरी बाजे मुरलिया बन में। येरी बाजे मुरलिया बन में, येरी बाजे मुरलिया बन में, येरी बाजे मुरलिया बन में, येरी बाजे मुरलिया बन में। कुंजन में धुन गूंज रही, कुंजन में धुन गूंज रही, अत रंग भरी मधु भाव भरी, अत रंग भरी मधु भाव भरी, अत रंग भरी मधु भाव भरी, रस भरी रसिका मन मेरी। बाजे मुरलिया बन में, ये बाजे मुरलिया बन, ये बाजे मुरलिया बन, ये बाजे मुरलिया बन, ये बाजे मुरलिया बन में। कुंजन में धुन गूंज रही, कुंजन में धुन गूंज रही, अत रंग भरी मधु भाव भरी, अत रंग भरी मधु भाव भरी, रस भरी रसिका मन मेरी। बाजे मुरलिया बन, ये बाजे मुरलिया बन में। शांत कांत संचार होता, शांत कांत संचार होता, शांत कांत संचार होता, मन सिद्ध मंत्र श्रवणन में, मन सिद्ध मंत्र श्रवणन में। भूपाली सुर श्याम बंसरी, भूपाली सुर श्याम बंसरी, अनुपम त्रिभुवन मेरी। बाजे मुरलिया बन में, ये बाजे मुरलिया बन, ये बाजे मुरलिया बन, ये बाजे मुरलिया बन में। अब इसमें इसका जो मुखड़ा है वो कौन से मात्रा से चालू होता है? धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा तिन 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 ता ता दिन दिन दा धा दिन दिन दा। ये रे बाजे मुरलिया बन, ये रे बाजे मुरलिया बन, ये रे बाजे मुरलिया। एक दो तीन, ये रे बाजे मुरलिया। हाँ, चार से चालू होता है।
ये रे बाजे मुरलिया बन में, ये रे बाजे मुरलिया बन में। और इसके बाद जो स्थाई खत्म होने के पहले और मुखड़ा से जब जुड़ता है तो वहां पे भी वो तान है, देखिए। ये रे बाजे मुरलिया बन में, ये रे बाजे मुरलिया बन, ये रे बाजे मुरलिया बन में। कुंजन में धुन गूंज रही, कुंजन में धुन गूंज रही। अत रंग भरी मधुभाव भरी, अत रंग भरी मधुभाव भरी। रस रे रसिका मन में, रे बाजे मुरलिया बन, ये रे बाजे मुरलिया बन में, ये रे बाजे मुरलिया बन, ये रे बाजे मुरलिया बन, ये रे बाजे मुरलिया बन में। The first line of sthai and the first line of antara in any bandish are so designed that they can be repeated. The singer shows his skill by catching back the first line after many different improvised passages. In some bandishes, other lines can also be repeatable, and in that case the singer may use one of these other lines as the home base in some part of the presentation. For example, दिन दिन दा। थोड़ा सा हाथ में ताल देंगे ना तो उसमें जरा मजा आता है। ले जा रे पथिका, ले जा रे पथिका, वाइतनो संदेशा पिया कोई तनो संदेशा पिया को। सुख चैन मोहे कछु न सुहावे, ले जा रे पथिका वाले, जा पथिका इतनो संदेशा पिया को। सुख चैन मोहे कछु न सुहावे, ले जा रे पथिका इतनो संदेशा। इसी को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड लाइन जैसे आप देख रहे हैं, दा दा दिन दिन दा। इतना संदेशा पिया को, सुख चैन मोहे कछु न सुहावे, ले जा
ये रचना थी पंडित C.R. व्यास जी की बिहाग में। तो इस तरह से आप उस बंदिश को अलग अलग एंगल से, नीचे से, ऊपर से, बीच से, दाएं से, बाएं से, हर एक कॉर्नर से उस बंदिश को देखने पर आपको बहुत सी ऐसी सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देंगी। अरे यहाँ पे काम करने के लिए जगह है। हम लोग कहते हैं कि वहां पे काम किया जाए। कौन सा काम? उस बंदिश को सजाने का काम। आलाप, तान, बहलावा, बोलालाप, कुछ भी काम, मतलब उसमें कुछ होना चाहिए, उसको बढ़ाने चाहिए, बंदिश की बढ़त हो। There are some bandishes whose मुखड़ा contains a तान, जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने एक राग भूपाली में गा करके सुनाया। While this makes the mukhda attractive to a listener, but it poses a challenge to the performer, because the taan in the mukhda has a pattern to it and is in a particular lay also. The singer is free to improvise in a style different from that of the mukhda, but when returning to the sthai, one has to merge with the lay and the pattern of the mukhda. अब जैसे है अभी हम लोग बिहाग को देख रहे थे। बिहाग की जगह अब हम थोड़ा सा मारू बिहाग को देखते हैं। एक हमेशा बात नोटिस करने की होगी, यदि बंदिश के उसमें तान से यदि वो मुखड़ा चालू होता होगा तो कभी भी बहुत धीमे लय में नहीं होगी, मध्य लय, थोड़ी सी जरा चढ़ी लय होगी। ये हम केवल द्रुत लय के बारे में बोल रहे हैं। अब इसमें बिल्कुल सीधा उस मारू बिहाग का अवरोही ले लिया है, वहीं से चालू होता है। बेगे दो मावो सुंदरवा, बेगे दो मावो सुंदरवा, अवन सुहावे मोर मदिरा, बेगे दो मावो सुंदरवा, बेगे दो मावो सुंदरवा, अवन सुहावे मोर मदिरा, बेगे दो मावो सुंदरवा, बेगे दो मावो। सा गा मा पा नि सा, सा नि धा मा गा रे सा नि सा मा गा, बेगे दो मावो सुंदरवा, बेगे दो मा, बेगे दो मा, बेगे दो मावो सुंदरवा, अवन सुहावे मोर मदिरा, बेगे दो मा सुंदरवा, बेगे दो मा। बैरागे बालमवा, बैरागे बालमवा, बैरागे। ये कहाँ से चालू होता है अंतरा? दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन। बैरागे बालमवा, बैरागे बालमवा, आठ दिन दिन दा दा दिन दिन दा, बैरागे बालम दा दिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन दिन दा दा, बैरागे बालमवा, बैरागे बालमवा, घर की सोथी राजा कासे कहो, विरह व्यथा मोरे मन की पिया, भाव रंग तोरे बिना जग जिया, भेगे
हम लोग अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। कुछ इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग चतुरंग, त्रिवट, तराना, ये भी कुछ इनकी भी बंदिशों को देखते हैं। और उसके बाद हम लोग बंदिशों, एक बंदिश को लेकर के उस पे आलाप कैसे होगा, बोल आलाप कैसे होगा, उसकी भाषा के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। और भाषा में भी एकार, ईकार, उकार, बहुत सी यहाँ पे लंबी चौड़ी कोई कविता होने वाली नहीं है, थोड़े से ही शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों में जो एकार, ईकार, उकार जो हैं वो किस स्वर पे है, उसका हमको गायक या गायिका को क्या फायदा होता है, ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। बेसिकली इस पूरे महीने में बंदिश को ही उसकी बढ़त कैसे होती है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा सा स्वर पहचान लेते हैं। एक मिनट। रे राइट नी ओके म सा सा ने ध क्या प के ध साध। हाँ सा सा नी राइट रे बोलना पड़ेगा शुद्ध की कोमल। सा म कोमल ग
किसी ने कुछ दूसरा क्या कहा? क्या? आ सा ग सा ग सा ग